Good morning students. Today our topic is from your geography book, chapter 3rd, agriculture. What is the meaning of agriculture? Agriculture is derived from two Latin words, ager plus culture, meaning the cultivation of land. और लॉन्ग पीरियड से ही काफ़ी बहुत एंशियंट टाइम से ही एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होता आया है, क्रॉप्स का, प्लांट्स का, एट्सेट्रा. एंड एग्रीकल्चर, डू यू नो, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर आर सम ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज. द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइवस्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. जो क्रॉप्स और कल्टीवेशन और रियरिंग लाइवस्टॉक है उसी को एग्रीकल्चर बोलते हैं. कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू गेट सिल्क फाइबर इज कॉल्ड सेरिकल्चर. सिल्क वॉर्म से सिल्क गेट करने का जो प्रोसेस है वो सेरिकल्चर. ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड पिसिकल्चर. कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर. Growing vegetables, flowers and fruits for commercial use is called horticulture. Commercial use के लिए vegetables, flowers and fruits को जब हम ग्रो करते हैं तो ये horticulture है. अब types of economic activities we will discuss about this topic. Before this, I ask you, have you ever eat stuffed potato paratha? Yes, definitely sure. तो stuffed potato paratha में what things comes? wheat flour, potato. तो ये जो सब चीज़ें हैं वो आती कहाँ से हैं? These are come from agriculture. और agriculture से आती हैं और agriculture products को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करके उसको प्रोसेस करके फिर हम यूज़ करते हैं. तो there are three main activities behind it. First, wheat flour. फिर हमने वो पोटैटो का जो है मसाला बनाया, फिर हमने उसको स्टफ किया और पराठा बनाया. तो देयर आर थ्री मेन एक्टिविटीज बिहाइंड दिस. तो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड थर्ड इज टर्शियरी एक्टिविटीज. प्राइमरी एक्टिविटीज, what are primary activities? All the activities related to gathering, extraction and production of natural resources are called primary activities. जितनी भी natural resources के extraction से लेकर जितनी भी activities हैं वो these all are primary activities. For example, agriculture, fishing, mining, cattle rearing and laundry. Secondary activities means activities that are related to the processing of products obtained from primary activities are called secondary activities. We can also say secondary activities as a manufacturing activities, because in this activity we make raw material into prepare material. Raw material became a prepare material in this activity. So we can call this manufacturing activity. Example of secondary activities are making clothes from natural fibers. All you know natural fiber from primary activity, and clothes are comes in secondary activity. Manufacturing iron or stainless steel from the minerals obtained through mining, processing, agricultural and animal products so that they can be consumed, manufacturing automobiles, etc. So secondary activity we can also say manufacturing activities. Third activity is tertiary activities. Services rendered to the society are included in tertiary activity. सर्विस एक्टिविटीज जो हैं वो हेल्प करती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज को. और एग्जांपल है टर्शियरी एक्टिविटीज आर ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, मेडिसिन, टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एटसेट्रा. एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी. अब एग्रीकल्चर जो है वो एज अ प्राइमरी एक्टिविटी है. मोर देन 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड
एक्टिविटीज। और स्पेशली इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। India, 2/3 of the population depends on agriculture. Agriculture is responsible for feeding millions of people and provide fodder to over 13 crore animals. Agro-based industry derive their raw material from agriculture. बहुत सारा हमारा इकोनॉमी की जो डिमांड है वो सब फुलफिल करता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो या फिर हमारा फॉडर प्रोवाइडिंग हो, क्रॉप प्रोवाइडिंग हो, फूड प्रोवाइडिंग, ये सब वर्क जो है, सारे फंक्शन जो है हमारे एग्रीकल्चर से ही पूरे होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, द कंसंट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इज कन्फाइंड टू ओनली सम पार्ट्स ऑफ द वेयर फेवरेबल कंडीशंस एग्जिस्ट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। फैक्टर्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर इज क्लासिफाइड एज physical factors and human inputs. So in physical factors there come a टोपोग्राफी, सॉइल, वाटर, क्लाइमेट। टोपोग्राफी मीन्स किस तरह वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट है, कैसी वहाँ की सॉइल है, किस तरह का वहाँ माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं। इस तरह से जो टोपोग्राफी है वो भी कहीं ना कहीं डिसाइड करती है एग्रीकल्चर को। सेकेंड इज सॉइल, यदि सॉइल फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर गुड होगी, अगर सॉइल फर्टाइल नहीं है तो एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं होगी। थर्ड जो है वाटर है, अगर प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है रिवर्स एरिया में, प्लेन्स में, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर अच्छे से होगी। उसके बाद क्लाइमेट अच्छा होगा, अगर हम वहाँ पे टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू क्रॉप होगा तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर जो है अच्छे से होगी, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। उसके बाद ह्यूमन इनपुट्स की हम बात करेंगे तो फर्स्ट इज मशीनरी और टूल्स। मशीनरी इन प्रेजेंट टाइम मॉडर्न फार्मिंग मेथड आर यूज्ड, तो मशीनरी इम्पॉर्टेंट है, टूल्स, ट्रैक्टर्स एट्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को मॉडिफाई किया जा सकता है। सेकंड फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और बहुत भी तरह के फर्टिलाइजर्स यूज़ करके एग्रीकल्चर को और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। मीन्स ऑफ इरिगेशन है, ट्यूबवेल, रिवर्स, कैनल, तो ये सब भी यूज़ करके, ये सब जितने भी मीन्स ऑफ इरिगेशन है यदि अवेलेबल होते हैं तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर जो है अच्छे से होगी। उसके बाद लेबर होना चाहिए, लेबर प्रोवाइड होना। अगर मान लो कोई भी क्रॉप है, फॉर एग्जांपल शुगर केन है, टी, कॉफ़ी, दीज आर लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स, और अगर लेबर प्रॉपर प्रोवाइड होती है तो एग्रीकल्चर अच्छे से होगा। और ट्रांसपोर्टेशन भी अच्छे से होना चाहिए। ये ह्यूमन फैक्टर्स है कि ट्रांसपोर्टेशन यदि अच्छे से है, वहाँ पे मान लो अगर प्रोडक्शन रेडी है, क्रॉप रेडी है, परंतु उसको मंडी तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको इसका जो लॉस है वो हमको भुगतना होगा। तो इस तरह से ह्यूमन फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स और ह्यूमन इनपुट्स जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर को। हाँ, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। Good morning students. Today our topic is from your geography book, chapter 3rd, agriculture. In previous video we have studied about types of economic activities. The economic activities are mainly of three types: primary activities, secondary activities, tertiary activities. After that we had discussed about factors affecting agriculture. Physical factors like topography, soil, water, climate, and human inputs में machinery or tools, fertilizers, means of irrigation, labor, transport. In this video we will discuss about the types of agriculture. As you know, agriculture is practiced in all over the world. और ये जब पूरे दुनिया में एग्रीकल्चर यूज होता है तो डिपेंड करता है वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन पे, वहाँ का क्या टेक्निकल लेवल है, उसके ऊपर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कैसी है, वहाँ पे डिमांड कैसी है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। फार्मिंग इज क्लासिफाइड इनटू two main types. First is subsistence farming
and second is commercial farming. In this video, we will discuss about the subsistence farming. Subsistence farming meaning क्या होता है कि in subsistence farming crops are grown mainly to meet the needs of the farmer's family. Farmer's family की जो need है उसी के ऊपर डिपेंड करती है subsistence farming, और इसमें जो है लो लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होती है. सारे मोस्टली फैमिली मेंबर्स इंक्लूड होते हैं इस कल्टीवेशन में, और प्रैक्टिस जो है क्रॉप प्रैक्टिस जो है वो ट्रेडिशनल है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग द आउटपुट और क्रॉप प्रोडक्शन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स यूज होते हैं, ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं. आप इस पिक्चर में ये जो पिक्चर है इसमें आप ये देख रहे हो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हल से फार्मर जो है कल्टीवेशन कर रहा है, तो इसलिए इसमें आउटपुट बहुत कम नजर आता है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी क्लासिफाई कर सकते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. अब जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डू यू नो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो इन प्रेजेंट टाइम ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स को यूज करके की जाती है. इन ऑर्गेनिक फार्मिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड. इन प्रेजेंट टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के वजह की ज्यादा यूज करने से हमें बहुत ज्यादा जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने लगी हैं फिजिकली. तो नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप. द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग आर फेवरेबल फॉर एनवायरमेंट एंड हेल्थ. इसीलिए अब जो है सभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि एनवायरमेंट भी सेफ रहे और हमारा वो भी हेल्थ भी बराबर बनी रहे. अब नेक्स्ट जो है इसका सब्सिस्टेंस फार्मिंग का जो फर्स्ट पार्ट है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है प्रैक्टिस की जाती है स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंपल बेसिक फार्म टूल्स जो है वो यूज होते हैं, और ह्यूमन लेबर पे ही मोस्टली डिपेंड करता है ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. और ये सुटेबल होती है जहां पर फर्टाइल सॉइल हो और लॉन्ग सनी क्लाइमेट हो. फॉर इन इंडिया गैंगेटिक प्लेन्स, ये जितने भी हैं ये सब इस तरह की फार्मिंग के लिए सुटेबल है. मोर देन वन क्रॉप इज रेज्ड ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन 1 ईयर, और 1 ईयर में ही एक से ज्यादा क्रॉप का कल्टीवेशन होता है. फूड क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मेज एंड पल्सेज आर ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग. Intensive subsistence farming is mainly practiced in thickly populated regions of the world such as Southeast and Southeast Asia where monsoon is prevalent. तो intensive subsistence farming के लिए मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स भी यूज होते हैं, और उसी जगह पे ये की जाती है जहां पर सॉइल जो है मोस्ट फर्टाइल है, और मोस्टली फूड क्रॉप यहाँ पे कल्टीवेट होती हैं. सेकंड जो है प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है ट्रेडिशनल मेथड है फार्मिंग का. प्रीमिटिव यानी प्री चीजें, जो हमारा जो एंशिएंट टाइम से ही जिन इक्विपमेंट्स को हम यूज करके फार्मिंग करते आए हैं वो प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है. इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्टली शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड सेकंड इज नॉमैडिक हर्डिंग. शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है, इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं कि कैसे पूरा फॉरेस्ट एरिया जो है वो बर्न किया हुआ है, और उसे बर्न करके उस पेच ऑफ लैंड को क्लियर कर देते हैं, और जो ऐश बचती है उसमें फास्फोरस बहुत ज्यादा होता है. उस फास्फोरस की वजह से वो सॉइल फर्टाइल होती है. फिर आफ्टर 2 और 3 इयर्स वो उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है, तब तक वो वहां पर कल्टीवेशन करते हैं. आफ्टर दैट वो दूसरी जगह पे जाके शिफ्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं. कई जगह इसको दूसरे नामों से भी बोलते हैं, जैसे स्लेश एंड बर्न, बुश एंड फेलो. In this type of agriculture, crop like maize, cassava, yam and potatoes etc. are grown. It is mainly practiced in the tropical forest of the Amazon basin, the Congo basin
साउथ ईस्ट एशिया एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है डिफरेंट नेम्स से डिफरेंट कंट्री में जो है इसको जाना जाता है। फॉर एग्जांपल झूम, इंडिया में इसको झूम बोलते हैं, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका, लादोंग इन मलेशिया, कोनुक इन वेनेजुएला, चेंजिन इन फिलीपींस। इस तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंट्रीज में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नामों से बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नॉमेडिक हर्डिंग। नॉमेडिक नाम से पता चल रहा है नॉमेडिक, दिस पिक्चर इज शो द नॉमेडिक हर्डिंग। In this kind of farming, herds may move from one place to another place with their cattle in search of pastures and water. Nomadic herding depends on the climatic condition and the nature of the terrain. Nomadic herding जो है डिपेंड करती है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन पे, वहाँ का टेरेन कैसा है इस पर। और माउंटेनियस रीजन में जो है जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, तो जब बहुत ज्यादा कोल्ड है तो वो अपर नीचे के वाले एरिया में आ जाते हैं, डाउन द वैली विद देयर कैटल। सच सीजनल माइग्रेशन इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमेंस, कि ये माइग्रेशन करते रहते हैं कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो वो डाउन वैली में आ जाते हैं, और जब टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है तो वो वापस ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो ये और इस तरह का जो माइग्रेशन है ये ट्रांसह्यूमेंस कहलाता है। हर्ड्समैन फॉलो द सेम रूट यूजुअली, ज्यादातर जिस रास्ते से वो आते जाते हैं उसे ही कॉमनली यूज करते हैं। सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स रियर्ड बाय नॉमेडिक हर्डर्स आर शीप, goat, camel and yak. They provide milk, meat, hides, skin and wool for the people. जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो सारी इन एनिमल से ही फुलफिल होती है। This is practiced mainly in semi-arid and dry regions, like parts of Central Asia, the Sahara Desert, parts of Rajasthan and Jammu and Kashmir in India. I hope you have understood this topic, subsistence farming. Thank you. In previous video, we have discussed about the subsistence farming. Subsistence farming classified into two main types: intensive subsistence farming and primitive subsistence farming. Again, primitive subsistence farming classified into two main types: shifting cultivation, nomadic herding. In this video, we will discuss about the commercial farming. What is the meaning of commercial farming? Commercial farming का मीनिंग है कि आप अर्निंग प्रॉफिट के लिए, ट्रेड के लिए फार्मिंग करते हैं या रियरिंग एनिमल्स। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज ट्रेड. द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल इज डन मेनली फॉर कमर्शियल पर्पजेज. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज वास्ट एरियाज. बहुत लार्ज स्केल पर ये फार्मिंग की जाती है और मशीन मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स को यूज किया जाता है, मशीन्स यूज होती हैं बहुत सारा. कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, इस टाइप के मेथड्स यूज करके ये फार्मिंग होती है. कमर्शियल फार्मिंग इज कैपिटल इंटेंसिव, बहुत ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है. और कमर्शियल फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स. फर्स्ट इज लाइव स्टॉक रेंचिंग, second is commercial grain farming, third is mixed farming and fourth is plantation farming. Firstly, we will discuss about livestock ranching. Look at this picture. This picture is related to livestock ranching. Livestock ranching is practiced mainly in the extensive temperate grassland where a large number of cattle, sheep, goats and horses are kept on permanent ranges. ये लाइव स्टॉक रेंचिंग मोस्टली वहीं पर ही टेम्परेट ग्रासलैंड में यूज होती है जहां पर अबंडेंट मात्रा में जो है कैटल प्रोवाइड होते हैं. रेंडियर आर ऑल्सो केप्ट ऑन रेंचेज इन द सब आर्कटिक लैंड ऑफ साइबेरिया. In this type of pastoralism, vegetation cover is continuous. और आप ये भी समझ सकते हो कि कैटल हैं तो वेजिटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो कंटिन्यूअस वेजिटेशन जहां पर है वहीं पर ही इस तरह की लाइव स्टॉक रेंचिंग पॉसिबल है.
जनरली देयर इज नो माइग्रेशन इन सर्च ऑफ वाटर एंड फॉडर, तो उन्हें फॉडर और वाटर के लिए माइग्रेट भी नहीं होना पड़ता, क्योंकि कंटिन्यूअस वहां पे वेजिटेशन रहता है, तो उन्हें किसी भी तरह की माइग्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। द रेंचेज आर साइंटिफिकली मैनेज्ड एंड हर्ट्स आर रेज्ड सोलली फॉर कमर्शियल पर्पजेज, और साइंटिफिकली मैनेज्ड रहते हैं। हर्ट्स जो हैं वो कमर्शियल पर्पज से ही कैटल रेंचिंग होती है। बेस्ट ब्रीड्स यूज होते हैं हाई क्वालिटी मीट और वूल के लिए। Any deficiency in pasture is substituted by cultivating crops used as fodder or by using manufactured feeds। और किसी भी तरह की कभी ऐसा हो भी पास्चर में कमी आ गई है वेजिटेशन, तो वो क्रॉप कल्टीवेट कर लेते हैं, फॉडर को यूज एज ए फॉडर और मैन्युफैक्चर्ड फीड्स भी, मतलब कुल मिला के उनको अपने कैटल्स के वो अच्छे से अच्छे फीड करके अच्छे से अच्छे मीट और वूल को प्रोड्यूस करते हैं। कैटल एंड शीप आर वैक्सीनेटेड टू गार्ड अगेंस्ट डिजीजेज, और यूएसए, न्यूजीलैंड, सदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड अर्जेंटीना आर known for well developed commercial ranching। The tropical savannas, the pampas, the linons of the South America, Mexico, Southern Africa and tropical Australia also practice। कुल ये जितनी भी सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर लाइव स्टॉक रेंचिंग की जाती है। अब है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का मतलब ग्रेन का मतलब फूड, मोस्टली फूड ग्रेन। In this type of farming, crops are grown for commercial purpose, for sale और export। सेल और एक्सपोर्ट करने के लिए फूड क्रॉप जो है ग्रोन की जाती है। मोस्टली व्हीट एंड राइस आर कॉमन क्रॉप्स। इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ लार्ज एरिया, 100 of hectares जो फार्म्स है वो किए जाते हैं इस कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। Commercial grain farming is practiced on the land spreading over 100 of hectares. These are called farms. Such farms are far from the populated areas। अब इतने लार्ज स्केल पर लैंड की रिक्वायरमेंट है, तो ये पॉपुलेटेड एरिया से दूर होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडर्न हाई टेक इक्विपमेंट्स आर यूज फॉर कल्टीवेशन। मॉडर्न इनपुट्स जो हैं वो यूज होते हैं, HIV सीड्स और इस तरह से जितने भी मॉडर्न इनपुट्स हैं उन सबको यूज किया जाता है इस तरह की कल्टीवेशन में। और ये जो कल्टीवेशन है मोस्टली पेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, स्टेपर्स ऑफ रशिया एंड पंपास ऑफ अर्जेंटीना में यूज होती है। ड्यू टू मॉडरेट रेनफॉल, short growing season and severe winter, cultivation is restricted to a single crop in this type of farming। और यहाँ पर मोस्टली सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप नहीं होती है, यहाँ मल्टी टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग से ही आपको नाम से पता चल रहा है कि मिक्स है, कैटल रियरिंग प्लस फार्मिंग। In mixed farming, cultivation of food grains and rearing of animals are practiced together। Both the activities are practiced on the same land। इन दोनों एक्टिविटीज, चाहे वो कैटल रियरिंग है या फिर फूड ग्रेन्स का कल्टीवेशन है, दोनों को ही सेम लैंड पर किया जाता है। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स, फॉडर फॉर एनिमल इज ऑल्सो ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। और जो एनिमल्स हैं उनके लिए फॉडर भी इसी लैंड पर ग्रो कर लिया जाता है। और एनिमल प्रोडक्ट लाइक मिल्क, एग, मीट एटसेट्रा आर ऑब्टेन। In this type of farming, modern machinery and advanced technology are used। modern machinery का और advanced technology का use होता है। Cow dung is used as a natural manure which increase the fertility of soil। और कहीं कहीं पर cow dung का भी as a natural manure का use किया जाता है और ये crop production को भी enhance करता है। फार्मर्स प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन मेथड, और ऐसा है कि फार्मर्स भी क्रॉप रोटेशन मेथड को यूज करते हैं कि बार बार वो जो है अपनी क्रॉप को चेंज कर करके कल्टीवेट करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। मिक्स्ड फार्मिंग प्रैक्टिस इन हाईली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड सम कंट्रीज ऑफ यूरोप। अब नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांटेशन फार्मिंग। फोर्थ टाइप है कमर्शियल फार्मिंग का। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग।
द क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर प्रॉफिट एंड रिजेंबल फैक्ट्री प्रोडक्शन। और इस तरह की जो फार्मिंग है ये मोस्टली फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए ही की जाती है और सिंगल क्रॉप कल्टिवेटेड होती है लार्ज एरिया में। इन दिस पिक्चर यू कैन सी शुगर केन कल्टिवेशन। इट इज बोथ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव के साथ साथ मनी की भी रिक्वायरमेंट होती है। और प्लांटेशन फार्मिंग आर प्रोसेस्ड नियर फील्ड्स। एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर एसेंशियल, और ट्रांसपोर्ट भी मस्ट है प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। Some plantation crops are tea, coffee, spices, rubber, banana, sugar cane and cotton. Look at this picture. These are tree gardens and tree plantation हो रहा है पूरा एक लार्ज स्केल पर जो है ट्री प्लांटेशन किया हुआ है। और नेक्स्ट है कॉफी प्लांटेशन। ये इतने लार्ज स्केल पर जो है ट्रेड के पर्पज से कॉफी प्लांटेशन हो रहा है। तो प्लांटेशन फार्मिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक रबर प्लांटेशन ऑफ मलेशिया, द कॉफी प्लांटेशन ऑफ ब्राजील एंड द टी प्लांटेशन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। Our next topic is major crops. Major crops, there are different types of crops. There are different types of crop grown in different parts of the world. Crops provide food for people and raw material for agro-based industries. कि जो हमारी क्रॉप्स हैं वो फूड प्रोवाइड कराती हैं पीपल को, और हमारी जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आइटम पर जो इंडस्ट्रीज बेस्ड हैं उनके लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम भी हमारी ये क्रॉप्स करती हैं। क्रॉप्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज फूड क्रॉप्स एंड सेकंड इज नॉन फूड क्रॉप्स। फर्स्टली फूड क्रॉप्स में सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं। नॉन फूड क्रॉप्स में हम देखेंगे कि फाइबर क्रॉप्स हैं। फाइबर क्रॉप्स एग्जांपल कॉटन एंड जूट जो हमारे क्लोथ इंडस्ट्री में यूज होती हैं। बिवरेज क्रॉप हैं, टी और कॉफी। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हैं, रबर एंड टोबैको। Summary of the lesson we will discuss in next topic. And before this we know an interesting fact. World Food Day is celebrated on October 16 every year. Summary of the lesson में हम एक shortly एक glance डाल लेते हैं पूरे चैप्टर का कि what we have studied in this chapter. First, there are three types of economic activities: primary activities, secondary activities and tertiary activities. Agriculture is a primary activity, secondary activity में manufacturing activities और tertiary activity में जितना भी transportation, communication, services all are coming in tertiary activities. The factors that affect the development of agriculture are, अब जो factors हैं जो agriculture के development को affect करते हैं, that these are topography, nature of soil, climate, irrigation, size of land and methods of farming. Agriculture is considered to be a farming system. The different type of farming are subsistence farming, shifting cultivation, nomadic herding, commercial farming. Commercial farming के भी 4 parts हमने देखे: livestock ranching, grain farming, plantation agriculture and mixed farming. India practices intensive subsistence agriculture. Rice, wheat, maize and millets are the major food crops grown in India. Tea and coffee are plantation crops. Cotton and jutes are fiber crops. Agricultural practices vary in developed and developing countries. I hope you have understood this chapter. Thank you so much.